Hello everyone, welcome to Canamrit for UGC Net. So today we'll be doing an important topic, that is Porter's 5 force model. Many a times the question has been asked from this topic that the 5 forces of Porter are. Please do like, share and subscribe to Management Canamrit by Soumya Agrawal. Porter's 5 force model. This model is given by Michael Porter in 1979. It's a strategic framework that helps identify and analyze 5 main competitive forces that affect company's profitability in a given market. कौन सी 5 forces हैं जो कंपनी की profitability को determine करती है एक market में? So ये कौन सी 5 forces हैं? 5 forces that affect profitability in a market are threat of new entrants, bargaining power of suppliers, bargaining power of buyers, threat of substitute products and service, competitive rivalry. So these are the 5 forces that shape an industry or a market. First one is threat of new entrants. This force determines how easy or not it is to enter a particular industry. कितना आसान है एक मार्केट में अंदर आना. If a industry is profitable, there are few barriers to entry. Rivalry soon intensify. अगर कोई भी इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है तो इसका मतलब है और फर्म्स आएंगी ही आएंगी उस मार्केट में और उससे कंपटीशन इंटेंसिफाई होगा ही. Threat of new entrant is high when number 1, low amount of capital is required to enter the market. जब इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर्ड है वो बहुत लेस है तो ईजिली कोई भी फर्म उस चीज़ का बिजनेस डाल सकती है. सेकेंड, एग्जिस्टिंग कंपनीज डू हैव लिटिल टू रिटालिएट. मतलब अगर कोई नई मार्केट नई शॉप खुलती है तो पुरानी शॉप उससे फाइट बैक नहीं कर सकती ईजिली. Existing firm do not possess patent trademark or do not have existing brand reputation. अगर कोई भी पेटेंट ट्रेडमार्क नहीं है किसी भी प्रोडक्ट का उसके पास तो उसका मतलब है कोई भी बैरियर नहीं है, आप इजीली उसको सेल ऑफ कर सकते हो. कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट आर लो. It does cost a lot of money for a firm to switch from one industry to another. जब switching cost बहुत लो है तो easily firm switch कर सकती है, easily firm अपने आप को उसमें डाल सकती है. Next is देयर इज़ लो कस्टमर लॉयल्टी. कस्टमर की कोई लॉयल्टी नहीं है. आज आप सस्ता दे रहे हैं तो वो आपसे ले रहा है, कल कोई और सस्ता देगा तो वो उससे परचेजिंग करेगा. सो दीज आर द थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इन द मार्केट. Second force is bargaining power of suppliers. Strong bargaining power allows suppliers to sell higher priced or low quality raw material to their buyers. If the supplier's position is strong, तो वो एक चीप प्रोडक्ट को भी हाईली प्राइस्ड वे में कस्टमर को सेल ऑफ कर सकता है. किन कंडीशंस में कर सकता है? नंबर 1, दे आर फ्यू सप्लायर्स बट मैनी बायर्स. कुछ ही सप्लायर्स हैं मार्केट में जिनके लिए बायर्स बहुत सारे हैं बट सप्लायर्स बहुत कम है. सेकेंड, सप्लायर्स होल्ड स्केयर रिसोर्सेज. जो भी चीज़ें वो सप्लाई कर रहे हैं वो बहुत कम है मार्केट में, तब भी वो अपने मन माफिक कॉस्ट कर सकते हैं उसके लिए. कॉस्ट ऑफ स्विचिंग रॉ मटेरियल स्पेशली हाई. आप इजीली स्विच नहीं कर सकते दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए. फ्यू सब्स्टिट्यूट रॉ मटेरियल एग्जिस्ट. जब फ्यू सब्स्टिट्यूट रॉ मटेरियल एग्जिस्ट होंगे तो सिंपल वही प्रोडक्ट्स बनेंगे जो बन रहे हैं, और जब प्रोडक्ट्स की स्कैसिटी होगी तो वो कितने भी कॉस्ट में सेल ऑफ होंगे तो सप्लायर्स विल हैव अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन द मार्केट. नेक्स्ट कम्स बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, द थर्ड फोर्स ऑफ पोर्टर्स 5 force model. Buyers have a power to demand lower price or higher product quality from industry producers when their bargaining power is strong. Easily अगर बायर की bargaining power strong होगी तो वो क्या करेंगे? वो अपने आप को एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट डिमांड करेंगे, वो भी एट लोअर कॉस्ट. ठीक है. हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन? Buying in large quantities or control many access point to the final customer. Means when you buy in large quantities you demand discount. Second, when only few buyers exist. When only few buyers exist, what happens? कि जो भी buyers हैं वो अपनी conditions में product को खरीदते हैं seller से. Third, switching cost from one supplier are low. अगर जो हमें सस्ते में देगा हम उससे लेंगे तो हम इजीली स्विच कर सकते हैं. दे आर मैनी सब्स्टिट्यूट्स. किसी भी प्रोडक्ट के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं तो हम कोई भी सब्स्टिट्यूट जो हमें ज़रूरत है हम उसके हिसाब से उसको खरीद सकते हैं. बायर्स आर प्राइस सेंसिटिव. प्राइस सेंसिटिव का मतलब हुआ they want to purchase from the supplier whosoever gives him at the lowest minimum cost. So buyers are price sensitive. They don't want to get anything else
वही चीज़ चाहिए जो चीज़ सस्ते में मिल जाए उनको, ठीक है. नेक्स्ट इज थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स एंड सर्विस. This force is especially threatening when buyers can easily find substitute products with attractive prices and better quality, and when buyers can switch from one product to another at little cost. बायर्स के लिए बहुत एफिशिएंट हो जाएगा अगर कोई भी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट इजीली अवेलेबल है, दैट टू ऑफ बेटर क्वालिटी इन द मार्केट एट अ लोअर प्राइस. वो इजीली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उस प्रोडक्ट के लिए दूसरे प्रोडक्ट के उस पर. फॉर एग्जाम्पल, टू स्विच फ्रॉम टी और कॉफ़ी डजंट कॉस्ट एनीथिंग. अगर टी और कॉफ़ी के बीच में स्विच करना है तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट मैटर नहीं करती. अनलाइक स्विचिंग फ्रॉम कार टू बाइसिकल. कार टू बाइसिकल में कोई स्विच नहीं करेगा, कम ज़्यादा भी हो जाए तब भी नहीं करेगा. बट इंस्टेड अगर हमारा टी एंड कॉफ़ी में स्विचिंग है तो ईजिली कर लेगा अगर प्राइस इफेक्टिवनेस आ जाती है तो. नेक्स्ट इज रिवाल्ट्री अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स. This force is a major determinant of how competitive and profitable an industry is. In competitive industry, firms have to compete aggressively for a market share, which result in low profit. जहाँ भी बहुत सारी मार्केट में बहुत सारी शॉप्स होंगी और ज़्यादा उन्हीं प्रोडक्ट्स की शॉप्स होंगी, अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी, बहुत सारे सेलर्स होंगे उसके, तो वहाँ पे कंपटीशन इंटेंसिफाई करता है. क्या कंडीशंस बनती हैं? दे आर लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे. एग्जिट बैरियर्स आर हाई. अगर आप मार्केट से बाहर जाएंगे तो आपको बहुत नुकसान होगा, तो एग्जिट बैरियर्स आर हाई. देन इंडस्ट्री ऑफ ग्रोथ इज स्लो एंड निगेटिव. उस इंडस्ट्री या उस प्रोडक्ट की जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो है, तब भी आप फंस सकते हैं. कॉम्पिटिटर्स ऑफ इक्वल स्केल या इक्वल साइज, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट या स्केल ऑफ ऑपरेशंस एक सेलर रखता है वो इक्वल है, तो ऑलमोस्ट इक्वल साइज के ही प्रोडक्ट्स बनेंगे और इक्वल कॉस्ट करेंगे. लो कस्टमर लॉयल्टी. कस्टमर लॉयल नहीं है. प्रोडक्ट्स आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड एंड कैन बी ईजिली सब्स्टिट्यूटेड. ऐसा नहीं है एक प्रोडक्ट दूसरे से बहुत डिफरेंट है तो उसकी सेलिंग बहुत अलग तरह से हो सकती है, वो मोरलेस सेम है. तो कॉस्ट में बहुत सारे जब सेलर्स होते हैं और लिमिटेड बायर्स होते हैं और बायर्स को पूरी इन्फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट की, तो हमें पता है सारे ही सेलर्स को नॉर्मल प्रॉफिट होता है, कोई भी प्रॉफिट मार्जिन्स को बहुत ज़्यादा नहीं ले पाता है. तो दिस इज़ what is revolving among existing competitors. So this is the Fortis 5 Force model. I hope you enjoyed the video. Please do like, share and subscribe to Management Gyanamrit by Soumya Agrawal. Thank you. Hope you enjoy learning.